Good morning, my dear children. A very warm welcome to your science online classes. In this video session, we are going to proceed with the chapter Soil Erosion and Conservation. As you know, in the last video, we have studied about the agents of soil erosion. कि human activities और agents कौन-कौन से होते हैं जो soil erosion के लिए responsible होते हैं और कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए. ओके, अब हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ लिया, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉइल कंजर्वेशन. Why is soil conservation necessary and how can we conserve the soil? Okay, as we know, soil is a valuable natural resource. हमें पता है ना, soil is a valuable natural resource. So, in order to conserve that valuable natural resource which is provided to us by nature, we need to conserve it. And what are the ways by which we can conserve it, we will be studying in this video. Okay, first of all, we are going to study what is soil conservation. Question है, what is soil conservation? Soil conservation क्या होता है? See, we have studied soil erosion. अब उस soil को कैसे हमें conserve करना है, we are going to study that. Okay. The protection of soil against erosion is called soil conservation. Soil की protection करना ताकि वो erode ना हो, ताकि soil erosion ना हो, that is soil conservation. Soil को हम conserve कर रहे हैं क्यों? ताकि वो soil erode ना हो, soil खराब ना हो, soil erosion ना हो. तो उस soil की protection करना so that it does not get eroded is called soil conservation. Right? So this is soil conservation. Next, we are going to study how can we conserve soil. हम soil को conserve कैसे कर सकते हैं. We have studied soil erosion. हमने अब ये भी पढ़ लिया कि soil conservation क्या होता है. Now we are going to study कि हम उस soil को जो हमें conserve करना है, हम उसे conserve कैसे कर सकते हैं. Right? So soil can be conserved in the following given ways. Okay, 5 ways are given that we can conserve the soil by. First one is afforestation. Next, terrace farming. Third, cover crops. Fourth, embankments. And fifth is bunds and fences. So these are the 5 ways by which we can conserve soil. Right? Now we will be studying about all these 5 ways in detail. Let's study. The first one is afforestation. बच्चों, हमने last video में पढ़ा था what is deforestation. Okay, deforestation was cutting down of trees in large numbers. But what is afforestation now? Afforestation कैसे help करता है soil conservation में? See. Afforestation involves the planting of trees in large numbers. Afforestation मतलब हमें trees को cut करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा grow करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा trees plant करने चाहिए. Right? So when we are planting the trees in large number, that is afforestation. Right? So afforestation means planting of trees in large number. Right? And how can these planting of trees help in conserving of the soil? क्या होता है, जब जितने ज़्यादा से ज़्यादा जब हम एक जगह पर प्लांट ग्रो करते हैं, एक सॉइल पर प्लांट ग्रो करते हैं, तो जो उसकी रूट्स होती है ना बहुत सारे ट्रीज़ की, वो सॉइल को एक साथ जोड़ लेती है. इट बाइंड्स द रूट ऑफ द ट्रीज. ओके, टुगेदर वो उसको बाइंड कर लेती है, समेट लेती है, अपने अंदर एक साथ जॉइन कर लेती है, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता और सॉइल कंजर्व होता है. राइट? So this is the very effective method of soil conservation, that is afforestation. The next is terrace farming. Terrace farming. Terrace farming कैसे help करता है soil conservation में? Terrace farming में बेटा क्या होता है, देखो as you can see here in the picture, क्या होता है, जो hilly slopy areas होते हैं, जो hills वाले areas होते हैं, जहाँ hilly slopy areas होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे टेरेस बना दिए जाते हैं, सीढ़ियाँ बना दी जाती है, स्टेप्स बना दिए जाते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, ऐसे ऐसे स्टेप्स बना दिए जाते हैं. इस पे फार्मिंग की जाती है. ठीक है, स्लोप्स पर
स्टेप्स बना दिए जाते हैं, हिली स्लोप्स पर ऐसे स्टेप्स बना दिए जाते हैं और उस पर फार्मिंग करी जाती है। इससे क्या होता है, जो वेजिटेशन होती है वो वाटर रिड्यूस करती है, जो वाटर का फ्लो होता है उसको रिड्यूस करती है। ठीक है, जो स्टेप्स बने हुए होते हैं जिससे वेजिटेशन होती है वो क्या करती है, वाटर का फ्लो रिड्यूस करती है और उससे क्या होता है, सॉइल इरोड नहीं होता, बहुत कम हो जाता है सॉइल इरोजन उससे। ठीक है, so terrace farming, if it is not undertaken, if terrace farming is not followed on hilly areas, what will happen, soil erosion बहुत easily हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, क्यों हो सकता है, क्योंकि because of slopes present in hilly areas, right? So hilly areas में terrace farming is very effective because it can conserve soil, right? So this is terrace farming, which involves step-like formations on hilly slopes, right? The next is cover crops. cover crops क्या होता है, क्या होता है, जब एक सीज़न होता है, हमने पढ़ा था सीजन्स के बारे में, हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, रबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स पढ़ा था हमने। तो कुछ सीजनल क्रॉप्स ऐसी होती हैं जब वो क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाती है, अनटिल द नेक्स्ट क्रॉप इज सॉन, क्या होता है, हार्वेस्ट होने के बाद क्रॉप क्या होता है, जो एरिया होता है जहाँ पर क्रॉप को ग्रो करते हैं, जो फील्ड वाला एरिया, जो फील्ड्स होते हैं वहाँ पे जो फार्मलैंड होते हैं उसको वो खाली रह जाता है। क्रॉप्स के हार्वेस्ट होने के बाद वो फार्मलैंड क्या होता है, वो खाली रह जाता है। वो खाली रहेगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन क्या होता है, कवर क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए। मतलब वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड एंड टिल द नेक्स्ट क्रॉप इज सोन, फार्मलैंड को बैरन नहीं छोड़ना चाहिए। बैरन मतलब खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। उसकी जगह फार्मर्स क्या कर सकते हैं कि उनका सॉइल इरोड ना हो, उसकी जगह फार्मर्स क्या कर सकते हैं, वो कोई सीजनल वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं जो कि कैसे एक्ट करेगी, एज अ कवर क्रॉप। ठीक है, कोई भी सीजनल क्रॉप फार्मर्स वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं एंड विच विल एक्ट एज अ कवर क्रॉप सो दैट देयर सॉइल विल बी प्रोटेक्टेड, कंजर्व फ्रॉम बीइंग इरोडेड। ठीक है, सो दिस इज कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स मतलब जब एक क्रॉप हार्वेस्ट हो गई है और उसके बाद एक नेक्स्ट सीजन में ही एक क्रॉप ग्रो हो सकती है, तो बाय द टाइम, उस टाइम के बीच में कोई भी क्रॉप, कोई भी प्लांट ग्रो कर सकता है फार्मर, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा। ठीक है, सॉइल इरोजन नहीं होगा, राइट। सो दिस इज कवर क्रॉप्स। द नेक्स्ट इज एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स क्या होता है, एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सा होता है जो कि रिवर्स के साइड में बनाया जाता है। रिवर्स के साइड बाय साइड मतलब रिवर्स के तरफ, चारों तरफ बनाया जाता है। ठीक है, सो एम्बैंकमेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज बिल्ट अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स। रिवर्स के कोने पर बनाया जाता है, अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स इट इज मेड सो दैट द फ्लडिंग ऑफ नियर बाय फील्ड्स विल बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, क्यों, जब बारिश आए बहुत तेज़, अगर बारिश भी आ जाती है तो फील्ड्स को वो इफेक्ट ना करे, फ्लडिंग ऑफ नियर बाय फील्ड्स वुड बी प्रोटेक्टेड। दैट इज व्हाई एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स, राइट। इससे क्या होगा, रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा होता है, आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होने का खतरा रहता है, इसीलिए एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं जिससे कि इट विल हेल्प द सॉइल इरोजन, it will help to conserve the soil, it will help in preventing soil erosion. Okay, so embankments help prevent soil erosion effectively. The next is bunds and fences. bunds and fences क्या होते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, ट्रीज ग्रो कर देते हैं, फेंसेस लगा देते हैं अपने फार्मलैंड्स के चारों तरफ, एज पर फार्मलैंड्स के चारों तरफ फेंसेस बना देते हैं जिससे कि क्या हो, उनका वो फार्मलैंड प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, और उनका सॉइल भी इरोड ना हो, सॉइल इरोजन भी ना हो। सो द बंज एंड फेंसेस ऑल्सो प्रिवेंट द वॉशिंग ऑफ द टॉप सॉइल बाय फ्लडेड रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जस्ट लाइक कि एज बना दिया जाता है उनके फार्मलैंड पे जिससे कि उसकी फील्ड्स में, उनके फार्मलैंड पर पानी ना घुसे और रेनी सीजन में उनका सॉइल इरोजन से वो प्रिवेंट हो सके फील्ड। सो दिस इज बंज एंड फेंसेस। सी, वी कैन नॉट completely stop wind and water from eroding the soil, but what we can do, हम इस प्रोसेस को कम करने में और इस प्रोसेस को कंजर्व करने में हेल्प तो कर सकते हैं ताकि सॉइल कंजर्वेशन ज़्यादा हो और सॉइल इरोजन कम हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारे प्लानट को हमें ग्रीन रखना होगा, हमें जागरूकता फैलानी होगी कि हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, राइट।
So these are the following methods by which we can conserve the natural given resource, that is soil, right? अब एक soil से related there is an information, that is, did you know World Soil Day is celebrated every year on 5th December. वैसे तो आप प्लांट्स को कभी भी ग्रो कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती कोई प्लांट ग्रो करने के लिए। अपने अर्थ को, अपने हमारे प्लानट को अच्छा रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। हम हर दिन अपने अर्थ के लिए कुछ कर सकते हैं, बट एक जागरूकता फैलाने के लिए एक स्पेशल डे क्रिएट किया गया है, दैट इज़ वर्ल्ड सॉइल डे। हाउ वी कैन कंजर्व सॉइल एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स कितना वैल्यूएबल है, कितना इम्पोर्टेंट है, एक स्पेशल डे बनाया गया है, दैट इज़ वर्ल्ड सॉइल डे एंड इट इज़ मेड ऑन 5th December। हर साल 5th December को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो इन दिस कमिंग ईयर ऑल्सो वी विल बी सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड सॉइल डे। फॉर दैट व्हाट यू पीपल कैन डू, यू कैन ग्रो ट्रीज, आप ट्री ग्रो कर सकते हो, ठीक है। So that is one of the way by which you can conserve the soil, in which you can give your part in conserving the soil, right? So this was about soil conservation topic which we have studied in this video. बच्चों वीडियो को ध्यान से देखना, सारे टॉपिक्स को क्लियरली समझना, पढ़ना, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टॉपिक एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली इफ़ यू वॉच द वीडियो केयरफुली। वीडियो भी ध्यान से देखेंगे बच्चे, एंड फ्रॉम योर बुक, साइंस बुक, दैट इज़ पेज नंबर 60 and 61, आप लोग ध्यान से टॉपिक का रीडिंग भी करोगे बुक में से, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम एंड स्टे सेफ चिल्ड्रन।